सो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड बहुत टाइम बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ एंड प्रॉब्ली इट्स बिन मोर देन 10-12 days and I hadn't started any challenge and completed like I haven't been in routine since last 10 days, and it's been a while since I have made the videos. So today I'm here and I'll state all the reasons why I wasn't able and what are the excuses and all that, because all these were excuses. But in these excuses, I had a lot of terrible and good experiences that I'll share with you. The ideology that I get to know, the uh, जो चीज़ें आसपास रोज़ होते रहती हैं उनसे इतना कुछ मतलब इतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक पहले ऐसा क्यों नहीं था मुझे। खैर वो तो पहले जो था या अभी जो हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आसपास इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं एंड उनसे साइकोलॉजिकली मैं इतना ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ। अब मैं सही हूँ या गलत वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट गॉड, और आई कैन से आई एम नॉट एन सम द मोस्ट इंटेलिजेंट एंटिटी टाइप ऑफ समथिंग। एंड मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा। आई बिलीव इन गॉड, या बट आई डोंट प्रे रेगुलरली लाइक our parents do. I don't do that. It's not because I don't want to, it's because no, I don't know how to do it. So straightforwardly, we are not talking about religion here. We are talking about. So okay, so let's start the video first. So in past few days, I have been suffering a lot through this lymph node on my neck. This side, on the left side of my neck, I am having two lymph nodes, which probably are stated as TB, tuberculosis, lymph node tuberculosis. So it's a very big shock for me. Like, it's a very big shock for me that I'm having such disease, such kind of disease, because in my mother's family side, no one has this kind of serious disease. Though it's not serious nowadays, we have medications for it. But yeah, but still, for for a mindset, for a man with mindset like me, like I'm so much into health and everything else, mental and so much. So I'm having such kind of disease is a proof that anything can happen in your life. So be ready for everything, and it's okay. Whatever happens is you just have to face it. It's not a game. Life is not a game, and आप इसको कभी भी जब चाहो ऐसे नहीं कर सकते कि मन करा खेला, नहीं मन करा बंद कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? सो व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इज जब मेरे को ये हो रहा था लिम्फ नोड, तो मैं हॉस्पिटल गया था एंड काफ़ी सारे टेस्ट हुए। 5,000 रुपये लग चुके हैं इसमें, इंजेक्शन्स लगे, यहाँ भी लगा, एंड नो medications, डॉक्टर ने कहा ये, एंड ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो गेट टेंस्ड व्हेन obviously if कभी आप पेरेंट बनोगे, then when you have your own kids and if they will suffer, uh, you will probably be tense about it. Or even if your mother or father suffers, your family member suffers, you get tense, right? So they got tense, but this is a loop cycle. When we are in trouble, family members get tense, and when we see that they are tense, we get more tensed and our health issues rises up. So यही एक चीज़ है, यही एक लूप है जिससे कोई ऐसे नेचुरली बाहर नहीं निकल सकता। मतलब इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है नेचुरल कि आपने ये करा फिर आप इससे निकल गए। इट जस्ट हैपेंस समथिंग, लाइफ में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। एंड मैं इतना डिप्रेस हो गया था, मैं सोच रहा था कि यार मैं एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ एट दिस पॉइंट, वाई इवन आई एम एग्जिस्टिंग, बिकॉज in my college life there is not much to say that I have achieved in my academic career, and not even in my YouTube career, not even in cinematic, not even in football. And then what even I am existing for? That's the kind of questions मेरे दिमाग में जो थे ऐसे घूम रहे थे, भंडरा रहे थे। एंड देन I was so much in pressure, like I cannot even tolerate that. But it's just like 3-4 days तो मैं ऐसे ही रहा, बिल्कुल बेकार खराब। I even talked to ChatGPT about this, and he said like it's not about giving up. He said that
I mean, ChatGPT doesn't feel emotions, but it answers in a very emotional way. I don't know its program very well, and ChatGPT told me that you cannot just give up, and it's just thing that happens in life. And जो मैंने आपसे कहा वही चीज़. So ठीक है. तो मतलब ये जो चीज़ थी, मतलब ये जो चीज़ है, मतलब प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये सीरियसली आपके इधर बहुत अफेक्ट करता है. मतलब यहाँ पे मेरे 2 हैं, तो ये ना स्ट्रेस बहुत देता है दिमाग पे, है ना. ओवर थिंकिंग वगैरह इस चीज़ करते हैं, वो मुझे हो रहा है. ओबेसिटी भी होती है टीवी होने पर. एंड सोते समय यू गेट स्वेटी एंड यू जस्ट रिमूव योर क्लोथ्स एंड यू डोंट इवन नो व्हेन यू वेक अप यू हैव रिमूव्ड योर अपर क्लोथ्स बिकॉज दैट shit happens. So okay, so that was one part of what I have been realizing, though there are so many other things that I have been observing and my mind was saying that like ऐसा होता है ना. मैं अपना पर्टिकुलरली बताऊँ, जैसे मैं सोचता हूँ कि लाइक बहुत सो सिंपल बेसिक से एग्जांपल लेते हैं. जैसे अभी मैं यूट्यूब देख रहा था एंड मतलब आजकल रील्स देख रहा था. तो ऐसा होता है ना कि मतलब एक ही चीज़ देखते रहो फिर उसी का आते रहता है. तो आई वॉज जस्ट सीइंग, practically saying, I was just seeing Hindu and Muslims debate and that kind of reels like कि हिंदू राष्ट्र बनाना है एंड मुस्लिम्स को बाहर निकालना है. एंड पर्सनली आई एम सेइंग यस दैट्स राइट because majority of 100 crore Hindus live in India and we only have India. So why these people want to make India an Islamic country? No, that's not a way. You have so much of Islamic countries, just go and shift there. And even if you want to live here, we are not even saying that go. We are not even fighting you. We are not even killing you or burning you alive on the streets. No. If you want to live in peace, you can. It's India. It's India. Everyone can live in peace, but just don't poke your noses into someone else's life and don't try to create a chaos. These guys just do that thing. And even their political parties that like Congress and all that are supporting them. I don't know why. What's happening in this country? I'm not fully into politics. I have just watched reels, but I don't know what's it's really going on. But that's not what I was about to say. What I want to say is that all this is happening, right? Like I live in India, and for me, my India is great. For मतलब ऐसा होता है ना कि आप जिस कंट्री के हो आपके अंदर से उसके लिए बहुत प्राउड फीलिंग आती है. आप हो या ना हो, जैसे मतलब होता है, आप समझो, ठीक है. तो जब भी मैं ऐसे रील देखता हूँ आई बिकम सो ऑब्सेस्ड विद माई कंट्री, विद हिंदुज़म, विद सनातन धर्म, विद इंडिया, विद इंडियंस, with my culture, with my religion, you know, I became so obsessed. But at the same time, मैं जब पहाड़ों में जाता हूँ एंड कचरा वचरा देखता हूँ एंड काफ़ी सारी रील्स देखता हूँ, जैसे यूपी, मतलब यूपी इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेट एंड वेरी कंट्रोल्ड एंड वेरी डिसिप्लिन स्टेट बिकॉज ऑफ आदित्यनाथ योगी जी. सो व्हेनेवर आई गो इन, मतलब मैं तो पहाड़ में ही रहता हूँ इधर उत्तराखंड में ही, तो मैं ऊपर को जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इतना सारा कचरा हो रखा होता है. फिर यूपी वाले, मतलब मोस्टली यूपी, दिल्ली, एचआर, हरियाणा, चंडीगढ़, दीज काइंड ऑफ people throw garbages at roads and then that kind of creates hate in me. And whenever I see any कोई भी नंबर प्लेट देखता हूँ ना, यूपी, एचआर, हरियाणा, चंडीगढ़, मुझे होता ऐसा अंदर से होता है कि भाई ये लोग तो यहाँ गंदगी बचाने आए हैं बस, और कुछ नहीं. तो ऐसा मतलब ये एक मेरा माइंडसेट है. आप मेरा माइंडसेट समझ रहे हो. अब ऐसे 1000 लोग होंगे जिनका माइंडसेट हर किसी, मतलब इंडिया के अंदर ही इंडियंस का ही दूसरे इंडियंस को हेट करना किसी पर्टिकुलर रीजन्स की वजह से होता ही होता है. कहीं भी आप रहो, जैसे जैसे कोई कंट्री मान लेता है, मुझे पता नहीं, जैसे मे बी चाइना, वहाँ पे कोई ऐसा रिलीजन नहीं है, वहाँ पे शायद सब चाइनीज़ ही हैं. सो जैसे अब इंडिया में तो कोई पहाड़ी हो गया, कोई जाट हो गया, कोई देसी हो गया, कोई सिख, लाइक ऐसे है ना. तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो तो जस्ट एक इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक पार्टीशन कर रखा है. दैट्स नॉट नेसेसरी. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, बट एनीवेज इट हैपेंड एंड वी कैन नॉट चेंज इट. सो जैसे चाइना में है, उधर सब चाइनीज़ हैं. जापान में सब, वहाँ पे सब जापनीज़ हैं, राइट. सो ऐसा होता है ना कि अब जैसे वहाँ पे कोई इंसान कुछ गलत करे, उसको रिलीजन के बेस पर सज़ा नहीं मिलती या फिर जात के बेस पर सज़ा नहीं मिलती. सेकुलरिज्म ऐसे कुछ वहाँ पे नहीं होता है. वहाँ पे जैसे एक डिसिप्लिन कंट्री है एंड थोड़ा वहाँ पे जैसे चाइना हो गया, वहाँ पे कह सकते हैं क्या कहते हैं उसे, मैं भूल गया.
चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, जस्ट दूसरा एक डेमोक्रेटिक, जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो चाइना को क्या कहेंगे हम, मैं भूल गया, मतलब इट्स रूल्ड बाय दैट काइंड ऑफ, आपने डिक्टेटरशिप देखी है वो वाली मूवी में जो होता है ना, वही। तो आप समझ गए होगे, ठीक है। तो मैं मेन मतलब मैं इस सब को छोड़, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं ये सब देखता हूँ रील्स में, इंडियन वर्सेस मुस्लिम्स एंड ऑल दैट फाइट्स। आई बिकेम, मेरा मतलब अंदर से गुस्सा आता है मुस्लिम्स को लेकर, ये वो सब। अब तो कहीं पे गलत भी दिखाया जाता है, कहीं पे सही भी दिखाया जाता है, बट मेनली मुस्लिम्स पोक देयर नोज इनटू हिंदूज एंड ट्राई, लाइक दे डोंट इवन वांट टू से भारत माता की जय। दैट्स नॉट इवन रिलीजियस स्लो, दैट्स नॉट इवन रिलीजियस लाइन, रिलीजियस लाइन है ही नहीं वो, भारत माता की जय। आपको भारत अम्मी की जय बोलना है वो बोल लो, है ना। बट लेट्स नॉट गेट इन टू दिस, इट्स अ वेरी बिग इशू। सो वेन एवर यू गो इन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड स्पेशली मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार हम अर्थ में रहते हैं, लाइक अब इसको ना, अब तो मैं इसको, अभी तो इस चीज़ को मैं देखूँ तो मैं खाली इंडियन लेवल पे देख रहा हूँ, ठीक है, इंडियन लेवल पे देख रहा हूँ। बाहर की कोई कंट्री का बंदा देख रहा होगा, उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी कंट्री तो है नहीं, मुझे क्या करना। बट हम देख रहे हैं, हमें तो पड़ता है, क्योंकि हमें यहीं रहना है, ठीक है, हमें इसलिए पड़ता है। बट इफ़ ऑल द ह्यूमन बींग्स, ऑल द कंट्रीज लुक लाइक हम अर्थ में रहते हैं, हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है रहने के लिए। कल को या आज ही या किसी भी क्षण एक माउंट एवरेस्ट बड़ा या उससे भी बड़ा एक एस्ट्रॉयड आकर अर्थ पे टकरा जाए, एंड अर्थ एक झटके में तबाह हो जाए, बिकॉज दैट स्पेस, दैट स्पेस इज सो बिग, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। देयर आर मैनी scientific fundamentals happening at space which are protecting earth, और अर्थ के ही हैं वो, बहुत सारे होते हैं, उस चीज़ में मैं नहीं घुस रहा हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर टॉपिक। तो अगर हम इसको इसे देखें कि अर्थ, लाइक मान, जैसे अब हिंदुज़्म में मानते हैं कि भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, मुस्लिम्स लोग मानते हैं अल्लाह ने बनाई है, क्रिश्चियन लोग मानते हैं जीसस, ठीक है। तो वैसे क्रिश्चियन में नहीं मानते हैं कि जीसस ने अर्थ बनाई है, ही वाज जस्ट देयर गॉड। सो आई डोंट नो दैट मच अबाउट क्रिश्चियनिटी, एंड बुद्धिज्म में भी उतना वो नहीं मानता, बट हिंदूज में कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट हिंदू, आई एम अ हिंदू एंड आई लव बीइंग हिंदू। सो व्हाट आई वांट, देखो मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो जैसे अगर हम इंडियन हैं, हम ना इमोशनली उस चीज़ को देख रहे हैं, इसलिए वो बौखला जा रहे हैं, ठीक है। इमोशनली हम उस चीज़ को देख रहे हैं, इससे हमें गुस्सा आ रहा है, जो कि आना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ये नहीं समझेगा कि मैं हिंदू के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मैं रिलीजन या उस पर किसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, इंडिया शुड बी इंडियन कंट्री, ओनली इंडियन, हिंदू, ओनली हिंदू कंट्री अगेन, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। बट नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंड माय विजन। अगर हम इसको, जैसे मान लो स्पेस सूट पहनकर स्पेस से बाहर से अर्थ को देख रहे हैं, क्या अब भी हम इंडिया में हिंदू मुस्लिम देखेंगे? नहीं ना, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, तो ये तुम बाहर आ गए हो, ये अर्थ है, तो क्या अब भी तुम हिंदू मुस्लिम देखोगे? बट नहीं ना। और ठीक है, मान लो ये दूसरे प्लैनेट्स हैं, है ना, तो हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि हम बाहर ही हम उस चीज़ से ही बाहर आ गए हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा वहाँ पे थिंकिंग, इमोशनली वो सब चीज़ें हैं ही नहीं। एक झटके में अर्थ तबाह हो गई, ठीक है, मान लो ये अर्थ है, ये तबाह हुई, ख़त्म, क्या बचा? क्या बचा ही क्या? नाउ वी डोंट नो दैट अगर ऐसा कोई होने वाला होगा तो गॉड विल अपीयर, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, आई डोंट नो। इंसान इतना पापी हो चुका है, भगवान क्यों रहेंगे उसके लिए? दैट जस्ट अ सेइंग, बट आई डोंट नो। Still, it's God is not fictional, but it's beyond humans imagination, so we cannot we cannot expect something like that. तो सोचो ना, 1 मिनट में अर्थ हट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तो बचा ही क्या? किस बात पे लड़ रहे हो? सो ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। बट अगेन आई एम सेइंग, द वन हु पोक देयर नोज ऑन others people life and others country should be terminated from the country, like they did terminate हिंदू एंड ब्राह्मण्स फ्रॉम कश्मीर। उनको भी मारना चाहिए, उनको भी ऐसे ही भगाओ, देन दे विल रियलाइज मे बी। सो व्हाट आई वांट टू से इज, people tend to see things emotionally, they felt it emotionally, and then they judge it, and then they judge the situation emotionally. सो आज का टॉपिक यही था। अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी ना, तो मैंने एक बहुत
बड़ी बात सिंपल वे में समझा दी है। वे भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो मेरे बोलने के तरीके, बट इट वॉज अ सिंपल, इट वॉज सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट थिंग। कल मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगा कि आज मैं बहुत अनप्रिपेयर्ड आया हूँ, मैंने कुछ डायरी वायरी कुछ भी नहीं लिखा है। कल मैं प्रिपेयर होकर आऊँगा एंड हर एक टॉपिक अच्छे से कवर करूँगा। कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहना पूरी वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।